ऑफ इकोनॉमिक्स, पीपल, ठीक है। हम लोग पीपल एज ए रिसोर्स शुरू करेंगे आज से। सबसे पहले पीपल एज ए रिसोर्स पढ़ने से पहले तुम लोग बताओ रिसोर्स क्या है। रिसोर्स तो शुरू से पढ़ रहे हो। रिसोर्स, व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स? एनीवन? पीपल एज ए रिसोर्स पढ़ रहे हैं हम। पीपल एज ए रिसोर्स पढ़ने से पहले जानना चाहते हैं कि रिसोर्स क्या है। यू ऑल नो इट वेरी वेल, so please anyone tell me what is resource? फटाफट बताओ क्या है रिसोर्स। हंसिका, हंसिका बताओ व्हाट इज रिसोर्स। आवाज जा रही है सबको? Yes, ma'am. Resources are physical value that human beings need for their survival. हाँ, और भी कोई बताएंगे? ये रिसोर्स हमको कहाँ से मिलता है? Ma'am, everything available in our environment which can be used to satisfy our needs. ठीक है, तो ये सारा रिसोर्स हमको मिलता है इन्वायरमेंट से। So everything which is available in environment which helps to satisfy our needs. जो नेचर जो डिफरेंट गिफ्ट प्रोवाइड करता है, नेचुरल जो थिंग्स हैं, that act as a source of further development for us. All these natural gifts provide source of development, satisfy our livelihood, satisfy our human needs. That is called resource, जो कि डायरेक्टली भी सेटिस्फाई करता है और प्लस दैट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ फर्दर डेवलपमेंट टू सेटिस्फाई आवर नीड्स एज वेल एज एस्पिरेशन। In people as a resource, we can take the meaning people resource in the same way. When people act as a means for the development of nation, when people which is well equipped with technology, education, and act as a means for development of nation, act as a means for the development of our economy, then it is called people. Then that people is called resource. People as a resource. If people contribute in the development of nation, if people provide different sources for satisfying the needs and development opportunity of people, then that is considered as resource, human resource. When human being act as a capital, when human being with their technology act as a source for development, then they are called human capital and human resource. And you all know that whenever any development takes place, that affects human being, and development means for human being. If there is nobody is living here and there or in our surrounding or in natures, then there is no meaning of any development, there is no meaning of any resource. So resource means meant for human being. If human being is there, then we make values of and then resources valuable for us. If human being is not there, then there is no meaning of resource. सपोज कर लो सराउंडिंग्स में बहुत सारा चीज है और एक भी पॉपुलेशन नहीं है, तो वो उतना चीज उतना गिफ्ट होने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर नेचर है, नेचर में बहुत सारे थिंग्स हैं जो कि हमारे डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं और उस डेवलपमेंट को एंजॉय करने के लिए ह्यूमन बीइंग है, तब वो मीनिंगफुल है। तो चाहे कितना भी रिसोर्सेज नेचर के द्वारा दिया गया हो, that is only meaningful in context of human being, क्योंकि human being utilize resource, human being develop resource, human being convert resource as a means of development. So
it is all meaningful in the context of human being. And when human being with their skill, with their education, with their technology promote or make valuable uses of natural resource and contribute in our development, then that human being is considered as human resource. So समझ गए, human being with their technology, education, skill is considered as human resource, and it is in the same way as resource contribute in the development. In the same way, human being also contribute to national development, economic development, and human development. So the chapter People as a Resource is an effort to explain population as an asset. अभी तक हम लोग population और population explosion की बात कर रहे थे. इंडिया वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, और उसको इस कंटेक्स्ट में देखते हैं कि ये सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, तो जितना ज्यादा पॉपुलेशन है उतना ही ज्यादा ये रिसोर्स को यूटिलाइजेशन करता है, और उतना ही ज्यादा रिसोर्सेज का कमी होता जा रहा है. इस रूप में देखते हैं, एज ए बर्डन के रूप में. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को भी उसी तरीके से हम लोग डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि इतना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया है कि रिसोर्स और पॉपुलेशन का पलड़ा जो है बिल्कुल तराजू अगर के रूप में देखेंगे तो बिल्कुल इम्बैलेंसेस क्रिएट हो गया है. रिसोर्स का तराजू ऊपर हो गया और पॉपुलेशन का तराजू नीचे हो गया है, और उसके दैट क्रिएट्स स्कैर्सिटी इन मेनी फील्ड. लेकिन अगर इसी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को, इसी ओवर पॉपुलेशन को अगर हम ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर दें, अगर हम उसको एजुकेटेड करके उसमें न्यू टेक्नोलॉजी से अपडेट करके उनका स्किल, तरह तरह के स्किल का ट्रेनिंग देकर अगर उनको अपडेटेड कर देंगे, तो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का जो निगेटिव इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकता है, एज इट इज हैपेंड इन द केस ऑफ जापान. जापान एक छोटा कंट्री है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन वहां पे ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल ज्यादा है. बर्डन जो है अनस्किल्ड पीपल के कंपैरिजन में स्किल्ड पॉपुलेशन ज्यादा है, एजुकेशनली वेल इक्विप्ड पॉपुलेशन ज्यादा है, इसीलिए रिसोर्स के एब्सेंस में भी वहां का नेशनल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंपैरेटिवली ज्यादा हुआ है. तो इंडिया में भी इसको पढ़ना इसलिए जरूरी है कि हम पॉपुलेशन और राइजिंग पॉपुलेशन को बर्डन के रूप में ना देखते हुए इसको एज ए रिसोर्स के रूप में जाने, एज ए रिसोर्स के रूप में इसको कन्वर्ट करें, ताकि हमारा सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री भले 7वां साइज में हो, लेकिन कम से कम डेवलपमेंट में शीर्ष पर आ सके, टॉप पर पहुंच सके. और इसकी फुल पॉसिबिलिटीज है हमारे यहाँ, बिकॉज वी आर सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, बात आ रही है समझ में सबको? बात समझ में आ रही है तुमको? पीपल एज ए रिसोर्स में हमको क्या पढ़ना है? टेल मी यस और नो, कि हम ऐसे ही बोलते जा रहे हैं, तुम लोग को कुछ ध्यान नहीं देना उसको. Yes. So the chapter People as a Resource is an effort to explain population as an asset. Asset के रूप में, एक संपत्ति के रूप में इसको हम देखें, for the economy rather than liabilities. Population explosion को productive population में कैसे convert करना है, ये through education, through training, through technology हम कर सकते हैं. Population becomes human capital when there is investment made in the form of एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर. ये ह्यूमन कैपिटल कब हो जाएगा? जब हम इन्वेस्टमेंट किसमें करें? लोगों को पढ़ाने लिखाने में करें, लोगों को लिटरेट बनाने में करें, लोगों को तरह तरह का ट्रेनिंग दें, लोगों में मेडिकल अवेयरनेस, उनका हेल्थ स्टेटस को प्रमोट करने की कोशिश करें. पढ़ते हो ना, हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड होता है. जितना हम मतलब स्वस्थ होंगे उतना ही ज्यादा हमारी कैपेबिलिटी, स्किल, कैपेसिटी बढ़ती है. तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा कंट्री वर्ल्ड के डेवलप्ड नेशन में से हो, हमारा कंट्री वर्ल्ड के टॉप रैंक कंट्रीज में से आ जाए, तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे यहाँ जो भी पॉपुलेशन है उनको प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके, उनका प्रॉपर मेडिकल केयर लिया जा सके, और उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की ट्रेनिंग दी जा सके, ताकि वो अपने लाइवलीहुड को भी अर्न करें और लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रोवाइड कर सकें.
ठीक है. इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल and productive knowledge embodied in them. Human capital, whenever we talk about human capital, जब कभी भी हम लोग human being को human capital कहते हैं, that means कि they are full of different qualities which contribute in national development. Human capital कहने का मतलब उसमें इकोनॉमिक कैपेबिलिटी भी है, उसमें स्किल भी है, उसमें टेक्निक्स भी है, और किसी भी चीज से वो वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का पूरा क्षमता है. वो मिट्टी को भी छुएगा तो वो सोना होगा. छूने का मतलब कि मिट्टी को भी इतना प्रोडक्टिव वो बना सकता है, इतना वैल्यूएबल उसमें अपना स्किल और टेक्निक ऐड करके इतना वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है कि उसके वैल्यू को कई गुना ऊपर बढ़ा सके. तो ह्यूमन कैपिटल कहने का मतलब human being with full of technology, education, skill and training. People as a resource is a way of referring to a country's working population in terms of their existing productive skills and ability. वैसा working population जो कि day by day अपनी क्षमता से देश का विकास को कंट्रीब्यूट करता है. डे बाय डे अपने इफिशियंसी को भी, अपने प्रोडक्टिविटी को भी, अपने टेक्निक्स को भी इंप्रूव करता है और कंट्रीज के डेवलपमेंट को भी कंट्रीब्यूट करता है. Looking at the population from this productive aspects emphasizes its ability to contribute to the creation of the gross national product. ठीक है. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में अपना एफर्ट से वो कंट्रीब्यूट करता है, और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जब कंट्रीब्यूट करता है तो कितना ही परसेंट में हो, थोड़ा ही हो, लेकिन वो कंट्री को प्रोग्रेस के रास्ते में आगे बढ़ाता है. Like other resources, population also is a resource, a human resource. This is the positive side of a large population that is often overlooked when we look only at the negative side, considering only the problems of providing the population with food, education, and access to health facility. When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation, and that adds to the productive power of the country, just like physical capital formations. कारण यही है कि किसी भी देश में जो वहाँ की गवर्नमेंट होती है वो अपने पॉपुलेशन को, अपने सब्जेक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने में लगी रहती है. हमारे यहाँ भी कई सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जिसमें कि प्राइमरी लेवल तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, सेकेंडरी लेवल तक बैलेंस क्रिएट करने के लिए वुमेन्स का फ्री एंड ये हायर सेकेंडरी तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें लोगों को फ्रीली विदाउट एनी चार्जेस उनको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है ताकि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तेज गति से हो सके. इसके अलावा हमारे यहाँ और भी सरकार की तरफ से कई सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड अदर हॉस्पिटल्स ये सब ओपन किए जाते हैं ताकि लोगों का हेल्थ स्टेटस को भी प्रॉपर ध्यान दिया जा सके. और इसमें गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट का फंड जो है वो वेस्ट हो रहा है, सिर्फ वो गवर्नमेंट अपनी लाइबिलिटीज को पूरा कर रही है. एक तरफ इस तरह का फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है तो दूसरी तरफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी हो रहा है, जो फर्दर गवर्नमेंट का ये सारा फैसिलिटीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और कंट्रीब्यूट करता है. गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है, गवर्नमेंट एजुकेशनल फैसिलिटी देती है, तो नए नए डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, टीचर्स, स्कॉलर्स ये सब का जन्म होता है, जो फर्दर आपके अपने कंट्री के डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं. तो इस तरह का इन्वेस्टमेंट जो सरकार भी कर रही है, उसका सिर्फ एक ही नहीं है कि सरकार का इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, खर्च हो रहा है, बल्कि उसका पॉजिटिव साइड क्या है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है. तो यही कारण है कि ये चलता रहता है, और जितना तेजी से होगा, जितना ज्यादा मेंबर्स जो होंगे इसमें शामिल होंगे, एजुकेटेड होंगे, उतना ही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, और तब हम एक्सेसिव पॉपुलेशन को बर्डन के बजाय एसेट के रूप में देखना शुरू करेंगे, जो कि कंट्री को डेवलपमेंट के मार्ग पर लेकर जाता है. ठीक है. Investment in human capital through education, training, medical care yields a return just like investment in physical capital. जैसे कि कोई एक जमीन है, हाँ, उसको एग्रीकल्चर के लायक बनाने के लिए हम उसमें फर्टिलाइजर लगाते हैं, उसमें ट्रैक्टर से उसको जोतते हैं, उसमें बीज डालते हैं,
खाद डालते हैं, इरिगेशन करते हैं, और तब फसल के रूप में हमको फसल मिलता है। यानी कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट का जो एक कंपोनेंट्स है उसमें इन्वेस्टमेंट करके वहां से हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करते हैं। इन द सेम वे अगर एक ह्यूमन बीइंग पर भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बाद में वो ह्यूमन कैपिटल के रूप में इमर्ज होता है, और वो एक ह्यूमन कैपिटल जो है वो उसमें कैपेबिलिटी है 4 और 10 और को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करने का। ठीक है, इस तरीके से कंट्री के डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट करते हैं। This can be seen directly in the form of higher incomes earned because of higher productive of the more educated or better trained person, as well as the higher productivity of healthier people. आपका जितना एजुकेटेड होंगे उतना ही कम समय लगाएंगे हम फर्दर डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन देने में। जितना ही अच्छा हेल्थ होगा, हमारी कैपेबिलिटी, हमारी पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगी। India's green revolution is a dramatic example of how the inputs of greater knowledge in the form of improved production technologies can rapidly increase the productivity of scarce land resource. We all know that India possesses 3.28 million square kilometer of total area. That is fixed asset, that is fixed in nature. But वो फिक्स्ड नेचर जो हमारा लैंड रिसोर्स है उस पर पॉपुलेशन प्रेशर जो है दैट इज गोइंग टू बी राइजिंग डे बाय डे, दैट इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग डे बाय डे। लैंड इज फिक्स्ड एसेट बट प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे ओवर लैंड, दैट डिमांड्स मोर एंड मोर रिसोर्सेज, more and more food products from land resource. Then how it is possible to satisfy the needs of rising population by that fixed asset of land? It is possible because with the human capital formations from early period to modern period, we have better technology to utilize our limited land for more and more production. एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है ग्रीन रिवोल्यूशन का। लैंड उतना ही है, पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ रहा है, और पहले 10 किलोग्राम अनाज होता था मान लो कि 1 बीघा जमीन पर, तो अब वो अनाज जो कन्वर्ट हो चुका है 1 क्विंटल में या 10 क्विंटल में, 10 किलोग्राम को 10 क्विंटल में कन्वर्ट करने हो गया है, वो वही 20 कट्ठा और 1 बीघा प्लॉट से। कैसे पॉसिबल हुआ? बाय ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब ह्यूमन बीइंग इतना वेल इक्विप्ड हो गया है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कि अब उसको पता है कि जो लैंड अर्लियर एक बार साल भर में जोता जाता था उसको हम 3 बार कैसे यूटिलाइज करें। उसको पता चल चुका है कि मॉडर्न टेक्निक को अप्लाई करके अगर 1 स्क्वायर फीट ऑफ लैंड से हम 10 किलोग्राम अनाज करते थे तो उसको 16 किलोग्राम कैसे 10 किलोग्राम को 40 किलोग्राम में कैसे 4 गुना कैसे बढ़ा सकते हैं। अब उसको पता है कि हम लगातार लैंड का यूज करेंगे तो कैसे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और बायोटेक्नोलॉजी इन सब का यूज करके जो लैंड पर जो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है ओवर यूटिलाइजेशन का, उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब उसको पता है कि 15 दिन जोतने का काम 3 दिन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है बाय विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। पता है ह्यूमन बीइंग को कि 15 दिन जो काटने में लगता था उसको 2 दिन में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं बाय यूजिंग थ्रेशर्स। तो देख रहे हैं ना कि प्लॉट वही है लेकिन एक्शन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से इतना ज्यादा हम लोग उस पे कम समय में ही प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। अर्ली मैच्योरिंग क्रॉप डेवलप कर लिए हैं, हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स डेवलप कर लिए हैं जिससे कि 100% प्रोडक्टिविटी इंश्योर होता है। इसको करके हम मॉडर्न टाइम में अपना डिमांड को कैसे फुलफिल कर ले रहे हैं बाय ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये है ह्यूमन रिसोर्स का वैल्यू, ये बढ़ रहा है तो हमारा डेवलपमेंट का प्रोस्पेक्ट्स भी बढ़ रहा है अगर हम इसको ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। और बाकी जो फिजिकल एसेट्स है दैट आर फिक्स्ड इन नेचर। ग्रीन रेवोल्यूशन इज द एग्जांपल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जीन रेवोल्यूशन इज द एग्जांपल ऑफ ह्यूमन कैपिटल formations. So not only do the more educated and healthier people gain through higher incomes,
Society also gain in other indirect ways because the advantage of more educated or healthier population spreads to those also who themselves were not directly educated or given health care. In fact, human capital is in one way superior to other resources like land and physical capital. Human resource can make use of land and capital. Land and capital cannot become useful on its own. सिर्फ इतना ही नहीं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से हम किस तरीके से अपना प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, किस तरीके से अपने डिमांड को बढ़ा रहे हैं, किस तरीके से नेशन को डेवलपमेंट पाथ पर ले जा रहे हैं, बल्कि जब हम अगर कंपेयर करेंगे ह्यूमन कैपिटल्स को फिजिकल कैपिटल से, जैसे कि लैंड हो गया, जैसे कि आपका अदर प्रॉपर्टीज हो गया, रिसोर्सेज हुआ, उससे कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पर भी ह्यूमन कैपिटल का सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है. कैसे? अब लैंड अपना यूटिलाइजेशन खुद तो नहीं करता है, नेचुरल वे में होता है, लेकिन जिस तरीके से हम उसको यूटिलाइज करके तरह तरह का नीड्स को पूरा कर रहे हैं कि घर बना के रह भी रहे हैं, रोड बनाकर ट्रांसपोर्टेशन भी कर रहे हैं, खेती करके अपना नीड्स को भी पूरा कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कर रहे हैं, माइनिंग भी कर रहे हैं, तो वो खुद से तो नहीं करता है. मिनरल्स है, लेकिन क्या लैंड अपने आप से माइनिंग करेगा मिनरल निकालने के लिए? नहीं करेगा. और अगर ह्यूमन बीइंग नहीं है तो उसका कोई वैल्यू भी नहीं है कि कितना फर्टाइल लैंड है, कितना मिनरल्स है, कितना फॉरेस्ट है, उसका कोई वैल्यू भी नहीं है. तो जितने भी ये फिजिकल कैपिटल है, दैट इज यूजेबल इन नेचर ओनली इन कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग. तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग का रोल ज्यादा है. ये इम्पोर्टेंट तभी है जब तक कि ह्यूमन बीइंग उसको यूटिलाइज कर रहे हैं. अगर ह्यूमन बीइंग ना हो तो ना तो वो एसेट है फिजिकल कैपिटल और ना ही उसका कोई मीनिंग है. वो सब फिर ऐसे ही नेचर का एक पार्ट हो सकता है, लेकिन इस नेचर को एक्सप्लॉइट करने में, इसके रिसोर्सेज का यूज करने में ह्यूमन बीइंग का होना जरूरी है. वो अपने लिए यूटिलाइज करता है, ये इसको बढ़ा रहा है, वैल्यू एडिशन कर रहा है, वो भी ह्यूमन बीइंग के द्वारा. नेचर अपने आप को, अपना कैपिटल, अपना रिसोर्स स्वयं यूज नहीं करती है, बल्कि ये ह्यूमन बीइंग है जो उसके रिसोर्स को, उसके फिजिकल इनपुट्स को वैल्यूएबल कन्वर्ट करता है, वैल्यूएबल वैल्यू प्रोवाइड करता है और वैल्यूएबल रिसोर्स के रूप में उसको कन्वर्ट करता है. For many decades in India, a large population has been considered a liability rather than an asset. इंडिपेंडेंस के बाद ही जितना तेजी से हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा था, तो कई दशक तक इसको हम लोग बर्डन के रूप में ही देखते रहे कि बाबा रे पॉपुलेशन और में ग्रोथ ज्यादा हो रहा है, पॉजिटिव ग्रोथ और निगेटिव ग्रोथ कम है. मतलब कि लोग मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, लेकिन जन्म दर ज्यादा है और मृत्यु दर कम है, जिससे कि नंबर ऑफ पीपल हर साल, हर डिकेड्स में एक बड़ी संख्या में ऐड हो जाता है एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन में. और इसको लोग कई सालों तक, कई दशकों तक बर्डन के रूप में ही देखते रहे हैं. बट अ लार्ज पॉपुलेशन नीड नॉट टू बी अ बर्डन फॉर द इकोनॉमी. एक्चुअल में क्या है, ये जो पॉजिटिव ग्रोथ हो रहा है पॉपुलेशन का, वो हमेशा बर्डन हम उसको नहीं कह सकते हैं. ठीक है. इट कैन बी टर्न इनटू अ प्रोडक्टिव एसेट्स बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल. ये बढ़ती हुई जनसंख्या जो है, इसको हम बर्डन से ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर एजुकेशनल फैसिलिटीज टू देम. ठीक है. By providing proper health care, health facility to all, by providing training for industrial development and agricultural development among people, by making people updated with the use of modern scientific technology, by making many research and by making experiment on that research, we can convert population from burden to human capital. Here one case study is given, a story of Sakal. There were two friends, Vilas and Sakal, living in the same village. Kahan? Simapur. Sakal was a 12-year-old boy. His mother Sheila looked after domestic chores, मतलब कि डोमेस्टिक काम, घरेलू जो भी काम धंधा, उस पर ध्यान देती थी. His father Butta Chaudhary worked in an agricultural field. उसका
जो सकल था एक सीमापुर गांव में रहता था और 12 साल का एक बच्चा था जिसकी माँ घर का काम करती थी, घर का देखभाल करती थी, और जिसका पापा जो भूटा चौधरी था वो एग्रीकल्चरल फील्ड में काम करता था। सकल helped his mother in domestic chores. He also looked after his younger brother Jeetu and sister Siku. सकल सबसे बड़ा था अपने भाई बहनों में और अपने मम्मी के साथ उनके काम में हाथ भी बटाता था, और अपने छोटे भाई बहनों को जीतू और सीतू को की देखभाल में भी मम्मी का साथ देता था। His uncle Shyam had passed the matriculation examination but was sitting idle in the house as he had no jobs. Bhuta and Sheila were eager to teach Sakal. They forced him to join the village school, which he soon joined. He started studying and completed his higher secondary examination. His father persuaded him to continue his studies. He raised a loan for Sakal to study a vocational course in computers. Sakal was meritorious and interested in studies from the beginning, and with great vigor and enthusiasm, he completed his course. After some time, he got a job in a private firm. He even designed a new kind of software. This software helped him to increase the sale of the firm. His boss acknowledged his service and rewarded him with a promotion. तो देख रहे हैं यहाँ पे सकल का स्टोरी। ज्वाइंट फैमिली में रह रहा है, उसके चाचा भी उसके साथ रहते हैं, मैट्रिकुलेशन किए हुए हैं लेकिन कुछ काम नहीं कर रहे हैं। पापा एक एग्रीकल्चरल लेबरर्स के रूप में काम करते हैं, मम्मी हाउस होल्ड वर्क को देखती हैं। सकल भी मम्मी पापा का हाथ बटाता था, लेकिन उसके पापा का क्या डिमांड था कि वो पढ़े, और उसको बाध्य किए कि वो गांव के स्कूल में जाकर अपना पढ़ाई करे। और वो पढ़ाई करना जब शुरू किया तो काफी तेज था, और हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट किया। उसके बाद भी उसके पापा बोले कि नहीं, तुम अपना एजुकेशन को कंटिन्यू रखो, और उसके लिए सरकार के द्वारा दिए गए फैसिलिटीज से लोन उठाया, अपने बेटे को पढ़ाया, उसको वोकेशनल ट्रेनिंग दिलवाया कंप्यूटर में, और वो कंप्लीट करने के बाद उसको जॉब मिल गया एक फर्म में। वहां पे वो इतना तेज था कि नया नया सॉफ्टवेयर डिजाइन करने लगा और कंप्यूटर वाले कंपनी में, और उसका डिजाइन किया हुआ सॉफ्टवेयर का मार्केट में ज्यादा सेल होने से उसका कंपनी का मालिक भी प्रसन्न हुआ और उसको प्रमोशन दिया। अब देखो किस तरीके से सकल के घर का बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। जहाँ 4-5 मेंबर थे, काम भी दूसरे फील्ड में कर रहे थे, लेकिन लोन लेकर ही एजुकेशन लेने के बाद भले ही उसके लिए लोन लेना पड़े, देख रहे हैं कि फैमिली बैकग्राउंड कैसे चेंज हो जाता है। वो सिर्फ अपने फैमिली के इकोनॉमिक इनकम को ही कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है सकल, बल्कि कंट्री के डेवलपमेंट को भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। अपने फर्म के थ्रू नए नए सॉफ्टवेयर बना रहा है, उसको वो बिक रहा है, और नेशनल इनकम बढ़ रहा है। जैसे कि उस फर्म का जितना इनकम बढ़ेगा उतना ही टैक्स भी तो देगा वो गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट का फंड भी तो बढ़ रहा है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपना मतलब इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करने के साथ साथ वो देश को भी कंट्रीब्यूट करता है, कंट्री के डेवलपमेंट को भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कहाँ किया गया? एजुकेशन में। इन्वेस्टमेंट कहाँ किया गया? वोकेशनल एजुकेशन में। और उसका रिटर्न क्या हुआ कि फैमिली का इकोनॉमिक कंडीशंस तो अपग्रेड हुआ ही, फर्म का भी, वो जहाँ काम कर रहा है उसका भी टोटल इनकम, ईयरली इनकम इनहांस हुआ, और थ्रू टैक्सेशन नेशंस में भी, नेशंस के डेवलपमेंट को भी, नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक और केस स्टडी है, तो यहाँ पे दिखा कि इन्वेस्टमेंट कहाँ किया गया? एजुकेशन में, और उससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हुआ जो कि उसके फैमिली के लिए ही इकोनॉमिक, फैमिली के इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए ही सुटेबल नहीं रहा, बल्कि देश को भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, कंट्री को भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक और स्टोरी यहाँ पे दिया हुआ है विलास का केस स्टडी। विलास was an 11-year-old boy residing in the same village as Sakal. Vilas' father Mahesh was a fisherman. His father passed away when he was only 2 years old. His mother Geeta sold fish to earn money.
to feed the family. She bought fish from the landowner's pond and sold it in the nearby mandi. She could earn only 150 a day by selling fish. Vilas became a patient of arthritis. His mother could not afford to take him to the doctor. He could not go to school either. He was not interested in studies. He helped his mother in cooking and also looked after his younger brother Mohan. After some time, his mother fell sick and there was no one to look after her. There was no one in the family to support them. Vilas too was forced to sell fish in the same village. He, like his mother, earned only a meager income. एक तरफ देखें कि दोनों का फैमिली बैकग्राउंड, चाहे विलास का हो या सकल का हो, फैमिली बैकग्राउंड सेम था. एक दूसरे के फील्ड में जाकर काम करता था, तो दूसरे के पिता दूसरे के पॉन्ड से मछली खरीदते थे, बेचते थे. अर्ली में ही उनका बहुत जल्दी ही निधन हो गया, जिसकी वजह से उसकी माँ वो काम करने लगी, और उससे ये काम करने से दूसरे के पॉन्ड से फिश लेना और उसको बेचना, उससे उसका इनकम काफी कम होता था और उस इनकम में घर चलाना मुश्किल था. सकल का पढ़ाई का तो बात छोड़ो, सकल का जो मेडिकल केयर था वो भी प्रॉपर नहीं लिया जा रहा था. वो पेशेंट था आर्थराइटिस का, उसका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था. इसके बाद भी सकल नहीं, विलास का, इसके बाद भी विलास कंपेल्ड था अपने छोटे भाई बहनों को देखने के लिए और घर का हाउस होल्ड वर्क करने के लिए. बाद में उसकी माँ बीमार पड़ी और खत्म हो गई और कोई भी उनके फैमिली को, बीमार पड़ी तो डॉक्टर तक ले जाने का भी पैसा नहीं था. सेम इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हैं, लेकिन एक तरफ जब एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट हुआ तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट आया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, और दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में नहीं हुआ, पढ़ने लिखने विलास नहीं गया, तो सेम बैकग्राउंड होने के बाद भी उसकी स्थिति ज्यों का त्यों था, वैसा ही सेम या पहले से और धीरे धीरे खराब ही होता गया. तो ये है, ये दो एग्जाम्पल में जो है, इसका स्टडी करने के बाद क्या प्रूफ होता है कि अगर इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में किया जाए, अगर इन्वेस्टमेंट हेल्थ फैसिलिटीज में किया जाए तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, और अगर इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा तो कंडीशन सेम हो सकता है या पहले से भी और ज्यादा खराब हो सकता है. तो अगर विलास का कंडीशंस में ज्यादा लोग होंगे तो वैसे कंडीशंस में हम पॉपुलेशन को बर्डन कर सकते हैं, लेकिन अगर वो बर्डन पॉपुलेशन में इन्वेस्टमेंट यानी एक्सेसिव पॉपुलेशन प्रेशर में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पूरा फैमिली का बैकग्राउंड सुधरता है, विलेज का बैकग्राउंड सुधरता है और फाइनली नेशनल डेवलपमेंट को भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. आपको इसमें एक वर्क दिया है, so let us discuss. Do you notice any difference between two friends? What are those? बताओ. अभी तो हम बता ही दिए तुम लोगों को, अब तुम में से कोई बताओ कि दोनों फ्रेंड के बीच में क्या डिफरेंसेस था. मेन सिमिलैरिटीज तो बहुत है, दोनों परिवार में सिमिलैरिटीज बताओ क्या क्या था, क्या क्या सिमिलैरिटीज है वो बताइए. हेलो, क्या हुआ? हम नहीं जानते, हमको फोन हम नहीं करो तुम लोग को. कोई बताएगा सिमिलैरिटीज क्या क्या है दोनों फैमिलीज के बीच में? डिफरेंसेस बाद का बात है. एनीवन? आराम से ज्वाइन करते हो, निकल जाते हो, वैसे अटेंडेंस नहीं, जो लास्ट तक रहेगा उसी का अटेंडेंस मार्क होगा. So tell me, what is the similarities of two different case studies? क्या क्या similarities था? सिमिलैरिटीज में था कि दोनों का एक